न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 124A के तहत केस दर्ज किया गया है राणा दंपति के खिलाफ। सरकारी वकील प्रदीप घरत ने ये जानकारी दी है। सरकार विरोधी बयान देने के कारण राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है राणा दंपति के खिलाफ। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 14 दिन के लिए राणा दंपति को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने 6 मई तक राणा दंपति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 124A के तहत मामला दर्ज किया गया है राणा दंपति के खिलाफ। सरकारी वकील प्रदीप घरत ने यह जानकारी दी है। सरकार विरोधी बयान देने के कारण राणा दंपति के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। सरकार को चुनौती देने और सरकार के खिलाफ बोलने को लेकर जेल भेजा गया है राणा दंपति को। जमानत मिलने तक रवि राणा भाईकाला जेल में रहेंगे, वहीं जमानत मिलने तक नवनीत राणा आर्थर रोड जेल में रहेंगे। जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 14 दिन के लिए राणा दंपति को जेल भेजा गया। तो पूरे फंसे हैं राणा दंपति। हनुमान चालीसा पाठ करने को लेकर कल अड़ गए थे राणा दंपति को। मातोश्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता था राणा दंपति, लेकिन शिव सैनिकों ने मातोश्री के बाहर भारी भीड़ जमा की थी। और कल राणा दंपति जिस खार इमारत में रुके थे वहां भी सैकड़ों शिव सैनिक जमा थे। और शाम को जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले गई थी, उस दौरान नवनीत राणा ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था मुख्यमंत्री के खिलाफ और गिरफ्तार हो गए थे नवनीत राणा और रवि राणा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, 14 दिन के लिए राणा दंपति को जेल भेज दिया गया। आज सुबह पुलिस पुणे खार पुलिस स्टेशन से बैंड्रा कोर्ट लेकर पहुंची थी और जिसके बाद सुनवाई हुई और अब फैसला भी आ गया है। 14 दिन के लिए राणा दंपति को जेल भेज दिया गया है। आइए सुनते हैं सरकारी वकील ने क्या कहा और नवनीत राणा और रवि राणा के वकील ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Without instructions from the police department. So I take it that it is on instructions from the police department. He argued that the case of the accused falls under 124 capital A, which is sedition. When he was called upon by us to show to the court that particular part of the remand application or those words which were supposed to have been uttered by the accused to show disaffection towards the state government, he miserably failed. He was not able to show even a single word which was uttered allegedly either by Ravi Rana or Navneet Rana to show disaffection towards the government. The only contents of the remand application was that he had prepared to come here for the purpose of chanting Hanuman Chalisa. We argued before the court that Hanuman Chalisa is nothing but a praise of Lord Ram, and the praise of Lord Ram and as well as praise of Hanuman go hand in hand. So if there is a particular chanting which is done in the presence of a person of another religion, then he may be justified in saying that offence under 153A has been committed. But the place, keep quiet and listen. But the place where the Hanuman Chalisa was supposed to be chanted was outside the house of people who claim to love Ram. They claim to love Lord Ram, and if they love Lord Ram, then question of wanting to chant Hanuman Chalisa should not be affecting them at all. Therefore, those words of chanting Hanuman Chalisa cannot fall within the ambit of 153 capital A, nor can they fall within the ambit of 124 capital A. Because if I praise my Lord, it cannot amount to showing disaffection to the government. It only shows my affection towards my Lord who has created me. Sir, was there any part of this entire case, please understand, this entire case is a bogus case. They have a very strong feeling that they are standing on loose ground. They are standing on loose ground. They know there is a possibility of release on bail. Therefore, they are prepared for a second FIR. So they are going to arrest him the moment he is released on bail in one case. Then there may be another case. Then there may be another case. We know what is supposed to be done. Please don't ask me what I'm going to do because I'm not going to discuss anything. Sir, Hindi. I am not. तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि रवि राणा और नवनीत राणा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने 6 मई तक राणा दंपति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 124A के तहत राणा दंपति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सरकारी वकील प्रदीप घरत ने मीडिया को यह जानकारी दी है। सरकारी विरोध बयान देने के कारण राणा दंपति के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। सरकार को चुनौती देने और सरकार के खिलाफ बोलने को लेकर
नवनीत राणा और रवि राणा को जेल हुई है। जमानत मिलने तक रवि राणा भाईकाला जेल में रहेंगे और नवनीत राणा जमानत मिलने तक आर्थर रोड जेल में रहेंगी। जमानत पर सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि रवि राणा और नवनीत राणा को 6 मई तक जेल में रहना पड़ेगा। तो हमारे रिपोर्टर प्रीतम सिंह बांद्रा कोर्ट के बाहर मौजूद है। आइए उनसे सुनते हैं इस समय कोर्ट के बाहर की क्या स्थिति है और रवि राणा और नवनीत राणा को लेकर नई अपडेट क्या मिल रही है। प्रीतम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताइए प्रीतम जी, अब अपडेट क्या मिल रही है? 6 मई तक जेल भेज दिया गया है रवि राणा और नवनीत राणा को। क्या जानकारी दी वकील ने? उनके वकील का क्या कहना है? देखिए, रिजवान का भी हमने जो बयान है और प्रदीप भरत जो सरकारी वकील थे उन्होंने साफ तौर पे जब कोर्ट के बाहर आए तो उन्होंने पूरी जानकारी दी और कहा कि एक धारा 124 के तहत जो है केस दर्ज कर लिया गया है और करीबन 6 मई तक उन्हें जेल में रहना होगा। इसके अलावा अभी कुछ थोड़ी देर पहले जो है यहाँ से दंपति जो राणा था वो पुलिस के साथ पुलिस की सुरक्षा में यहाँ से कोर्ट के बाहर निकले हैं और वो चले गए हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा कहा जाता है कि चुनौतीपूर्ण मामला बहुत दिख रहा है कि मतलब एक हनुमान चालीसा के विवाद को लेकर शुरू से ही जब जान वर्सेस हनुमान चालीसा शुरू हुआ था, लेकिन बाद में जो है हनुमान चालीसा वर्सेस हनुमान चालीसा हो गया हनुमान जयंती के बाद। तो काफी जो है एक तनावपूर्ण भरा जो राजनीति का माहौल दिख रहा है इन दिनों। नवनीत राणा को हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद करना महंगा पड़ गया है। दोनों अड़ गए थे कि हम किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसको लेकर ये कपल अमरावती से मुंबई आया था, काफी विरोध हुआ था। हनुमान जयंती के दिन तो नहीं कर पाए थे हनुमान चालीसा का पाठ, लेकिन 23 अप्रैल को कहे थे कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद इस कपल को अब महंगी पड़ती हुई नजर आ रही है। 6 मई तक जेल में रहना पड़ेगा। जेल में अब रातें कटेंगी नवनीत राणा और रवि राणा की। तो सब ये बहुत महंगा पड़ गया हनुमान चालीसा का पाठ करना रवि राणा और नवनीत राणा को। जी प्रीतम सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे सुनाई दे रहा है। जी, मेरा सवाल था आपसे, क्या रवि राणा और नवनीत राणा को हनुमान चालीसा का पाठ करना, जिद करना मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी कीमत पे करेंगे, ये बहुत महंगा पड़ गया क्या? महाराष्ट्र की राजनीति में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जो है इतना ये कह सकते हैं कि राजनीति जो है पूर्ण तनावपूर्ण दिख रहा है इसमें। और जिस तरीके से उन्होंने जो है दंपति राणा ने एक आह्वान दिया था कि कुछ भी हो जाए कि मतलब मातोश्री के बाहर बैठकर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हालांकि वो 22 तारीख को जब मुंबई में आए थे तभी से जो है गर्माहट इतनी तगड़ी दिख रही थी, राजनीति में हलचल दिखना शुरू हो गया था। मातोश्री के बाहर जो है तमाम जो कार्यकर्ता शिवसैनिक कार्यकर्ता वो इकट्ठा हो गए थे और लगातार रवि राणा और जो दंपति राणा है उनके खिलाफ जो है नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। और जो सबसे बड़ा नारा था उसमें ये कहा गया था कि अगर हिम्मत है तो आकर दिखाए। तो 23 अप्रैल को उन्होंने एक बार फिर कहा था कि कुछ भी हो जाए जो है मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके रहूंगा, लेकिन शाम होते उससे कुछ अलग ही दिखने लगा। उसके बाद शाम को जब उन्हें खार पुलिस स्टेशन के जो जवान थे वो उनके घर से गिरफ्तार कर उन्हें खार पुलिस स्टेशन लेके आए और आज 24 अप्रैल को जो है उन्हें कोर्ट में पेश जानकारी दी जो दे रहे हैं कि नवनीत राणा और रवि राणा को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो रवि राणा और नवनीत राणा को हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद महंगी पड़ गई है। दोनों कपल ने, रवि राणा और नवनीत राणा जो ये दंपति, इन्होंने जिद ली थी कि वो किसी भी तरह मुख्यमंत्री के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन ये पाठ करने की जिद उनको काफी महंगी पड़ गई है। कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया खार पुलिस स्टेशन से। उन्हें आज सुबह बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। बांद्रा कोर्ट में सुनवाई हुई और दोनों को 6 मई तक 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। 124A के तहत केस दर्ज हुआ है। सरकारी वकील प्रदीप भरत ने मीडिया को जानकारी दी है, सरकार विरोधी बयान देने के कारण
इस दंपत्ति के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। सरकार को चुनौती देने और सरकार के खिलाफ बोलने को लेकर राणा दंपत्ति को जेल भेज दिया गया है। जमानत मिलने तक रवि राणा भाईकाला जेल में रहेंगे और नवनीत राणा जमानत मिलने तक आर्थर रोड जेल में रहेंगी। जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, राणा दंपत्ति को हनुमान चालीसा का जिद करना बहुत महंगा पड़ गया है। 14 दिन के लिए अब जेल में रातें काटनी होगी नवनीत राणा और रवि राणा को। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।